जोड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया की इंडिया संबाद माध्यমৰ স্বাধীনতাৰ গ্যাৰান্টি ইণ্ডিয়া সকলো ভাৰতীয়ৰ সমমৰ্যাদাৰ গ্যাৰান্টি ইণ্ডিয়া স্বৈৰাচাৰী শাসনৰ অন্ত পেলোৱাৰ গ্যাৰান্টি ইণ্ডিয়া বিজেপিৰ বাবে আতংকৰ অন্য নাম ইণ্ডিয়া সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই মুম্বাইত সম্পন্ন হ'ল ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ তৃতীয়লানি বৈঠক দেশৰ সৰুবৰ 28টা দলে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি বুজাই দিলে ইডি সিবিআই লৈ ভূক্ষেপ নকৰি বিজেপিৰ অপশাসনৰ পৰা ভাৰতক মুক্তি দিবলৈ বাংগালুৰুত মিলিত হোৱা দলকেইটা সংকল্পবদ্ধ মাত্ৰ দলীয় ঐক্যই নহয় ভাৰতক বিজেপিৰ স্বৈৰাচাৰী শাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াই এই মুকলি মঞ্চৰ পৰাই দাঙি ধৰিলে তেওঁলোকৰ সমাগত দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ আগলিপত্ৰ সাম্প্ৰদায়িক সমত মডানী ৰাজত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা বিষয়টো সৰ্বাধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ মুম্বাই বৈঠকত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা হৰণে ভাৰতীয় জনগণৰ দুখ দুৰ্দশা বৃদ্ধি কৰাৰ দিশলৈ আঙুলিয়াই ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা ঘূৰাই দিবলৈ কি কৰিব সেই কথাও প্ৰকাশ কৰে ইণ্ডিয়াৰ নেতৃবৰ্গই Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Laluji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है, कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है। प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, ये उनका कहना है। और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ़ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी एक करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए। ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ এই বৈঠকত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে কংগ্ৰেছে জাতীয় ৰাজনীতিত প্ৰথমবাৰলৈ বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা ত্যাগ কৰি সকলো দলকে সমমৰ্যাদা দিয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। সেয়েহে মুম্বাই বৈঠকত গঠিত ইণ্ডিয়াৰ সমন্বয় সমিতিত 14টা ৰাজনৈতিক দলৰ 14গৰাকী নেতাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। বৃহৎ দল হিচাপে কংগ্ৰেছে যেনেকৈ দুজন সদস্য সমন্বয় সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই, সেইদৰেই জাতীয় ৰাজনীতিত উপেক্ষিত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পিডিপি দলকো দূৰৈত ৰখা নাই। বৈঠকৰ মঞ্চত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ একোজনকৈ শীৰ্ষ নেতাকে সমুখ শাৰীত স্থান দিয়া হৈছে। সমন্বয় সমিতিৰ উপৰিও গঠিত প্ৰচাৰ সমিতি, সামাজিক মাধ্যম গোট, সংবাদ মাধ্যম গোট, গৱেষণা গোটত প্ৰতিটো দলৰ প্ৰতিনিধিত্ব নিশ্চিত কৰা হৈছে। কোনো এটা উপসমিতিতেই একাধিক দলীয় প্ৰতিনিধিত্ব এৰাই চলা হৈছে।
ইণ্ডিয়াৰ সভামঞ্চত প্ৰতিটো দলৰ নেতাকেই সমগুৰুত্বৰে কথা কোৱাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে। নেতাসকলেও একেমুখে বিজেপিৰ স্বৈৰাচাৰী শাসনৰ পৰা ভাৰতীয় জনগণক মুক্তি দিয়াৰ সংকল্প ব্যক্ত কৰিছে। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाया है, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भयमुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। বিজেপি এই ঐক্যত দিশহাৰা হোৱাৰ কথাটো এৰাই চলা নাই ইণ্ডিয়া নেতৃবৰ্গই। তেওঁলোকৰ ভাষণত উঠি আহিছে নিৰ্বাচন আগুৱাই নিবলৈ বিজেপি আৰম্ভ কৰা কূটকৌশল। একেটা সময়তে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ নেতৃত্বৰ কণ্ঠত প্ৰতিফলিত হৈছে নিশ্চিত বিজয়ৰ প্ৰত্যয়। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग। और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे
और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए। यही मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमएलए एमपी राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर किया नहीं ऐसा, लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। वेब डेस्क रिपोर्ट, द ईस्टर्न वेव।